Good morning, students. I'm welcoming you all to my YouTube channel, Learning Island. Today, I am going to discuss the chapter 4, data handling, from your mathematics book, class 6, named Ganita Prakash. Okay, so you just remain with me in this session with your patience. Take your notebook and start writing whenever needed. Okay, so let us move to the main page. Okay, so I'm taking you to your textbook directly. So this is your textbook. So we start from here. The details of uh, the subject and different kinds of examples are given here. I will only focus on the main topics where I feel that you need to understand the thing more elaborately. Okay, so my dear student, see, the name of the chapter is data handling and presentation. So first of all, understand the name, data handling. डाटा क्या होता है? What is data? Data होता है collection of informations. Okay, collection of informations. Here the example has been given by the NCERT members. That is, if you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors. ये जो लिस्ट ऑफ कलर्स आएगा ना, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, मैजेंडा, ऐसा violet. So all these colors, these are the informations. Okay, so the collected informations are called data. Yeah, someone calls it the data. Okay, so here the definition of data is given. So I'll ask you to mark it because it is very important. Okay, so in this chapter I will ask you to mark some portions because the question may come from this. You see this one, any collection of facts, numbers, measures, or observation, or other descriptions of things that convey information about those things is called data. So in short, you can say, what is data? The collection of information, okay, is called data. So in short, this is the definition. Okay, so you note it down, very important, in the first page. Okay, what is data? Now you will analyze different kinds of data and also represent those data in different ways to understand in a better way. So this is called the presentation. देखना, कोई अगर बोलेगा ना कि तुम ये चीज के बारे में बताओ मेरे को कुछ, तो ये जो बोलता है मतलब वो हमको प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये स्लाइड बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बोल के भी कर सकते हैं. तो दैट मीन्स टू से समथिंग और टू शो समथिंग टू समवन, दिस इज द प्रेजेंटेशन. सो डेटा को प्रेजेंट करना है. और हैंडलिंग क्या होता है? हम जो डेटा आएगा ना, अब यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया, तो कलर जो है ना, वो तो ये फ्यू कलर्स मतलब समथिंग, ये दिस इज नॉट ए ह्यूज डेटा, ह्यूज. तो जब ह्यूज डेटा आएगा ना,
तब उसको हम कैसे सजा के लिखेंगे, कैसे इसको अरेंज करेंगे, so that anybody can understand from this presentation of data कि क्या इंफॉर्मेशन को चाहिए, ये तुरंत मिल जाएगा। मतलब एफिशिएंसी टू स्टडी द डेटा, टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा वेरी इजीली। द सेटअप which you made या which you will make is called the presentation. So I hope I can make you understand what is data handling, what is data, and what is the presentation of data. So now we will learn about different types of presentation of the data. Okay, let us proceed with this. See, अभी यहाँ पे जो कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पे देखो एक स्टोरी का टाइप में बोला, नबिया एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम। क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, बोला आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। तो स्कूल में जो डिफरेंट स्टूडेंट होगा ना, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट गेम को लाइक करता होगा ना। तो likings of games, if you may collect all the likes or the favorite games of different students in your class, so this will be a data। ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना तुम्हारे क्लास में 10 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 15 स्टूडेंट को हॉकी पसंद है, ठीक है ना, 20 और 15 कुछ भी स्टूडेंट्स को चेस पसंद है, हो सकता है। तो इस तरह जो कलेक्शन करते हो ना, उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये लोग Naresh and Nabia decided to go to each students in the classes and ask what their favorite game is। देखो इन्होंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, सपोज ये तुम्हारा स्कूल का ही है। देखो कितना लोगों का नाम इसमें कलेक्ट किया। ठीक है, महनूर, इसने बोला मेरे को कबड्डी पसंद है। जुबीमुन, इसने बोला हॉकी पसंद है। सिमरान, इसने बोला कबड्डी। उन्होंने ईच एंड स्टूडेंट को तुमने पूछा कि तेरे को क्या पसंद है, उनका नाम लिखा और लिखा। देखो यहाँ पे देखो महनूर, महनूर एंड सिमरान को कबड्डी पसंद है। देखो फिर नंद छतलिया को पिट्टू ये पसंद है। क्या पसंद है नंद को? सतुलिया, एक गेम होंगे नाम, गेम का नाम होंगे। इमोन को हॉकी पसंद है। युवराज को क्रिकेट पसंद है, रेहाना को हॉकी पसंद है। तो इस तरह से डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो टेबल है, दिस इज द डेटा, दैट इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम दे लाइक। ठीक है, तो दिस इज द डाटा। अभी कोई अगर तुमको पूछता है कि ये डाटा में से आप बताओ कितने स्टूडेंट को कबड्डी पसंद है, तो इसे तो देख के निकालना थोड़ा टफ है, काउंट करना पड़ेगा कितना। देखो एक कबड्डी मिल गया, एक मैं निकाल दिखाता हूँ। देखो ये वाला एक कबड्डी हो गया, ठीक है। फिर ये वाला एक कबड्डी, ये कबड्डी, फिर इधर को कबड्डी है क्या, ये कबड्डी, एक कबड्डी, ये कबड्डी, और नहीं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कबड्डी हो गया। अब बोलो हॉकी कितना, ये हॉकी, ये हॉकी 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो मेरे को ये ढूंढ के निकालने के लिए टाइम लगता है। अभी अगर मैं इसी डेटा को थोड़ा इजी वे में रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आप देख के बता दोगे कि यस इतना है, जैसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऐसे होता है, एक नंबर में होता है आपका टैली, ये डबल एल वाई, टेलीमार्क। टेलीमार्क देके हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक टेबल में। फिर हम इसको बार ग्राफ, बार ग्राफ देख के कर सकते हैं, सब दिखाऊंगा मैं।
ठीक है। फिर पिक्टोग्राफ आता है, पिक्टोग्राफ आता है। ठीक है। तो ये तीन ग्राफ जो है ना मेन है। ये ग्राफ से ये जो लॉट्स ऑफ डेटा जो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसी प्रेजेंटेशन को द्वारा मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, तो इजीली कोई भी अनपढ़ लोग भी इसको तुरंत बोल सकते हैं कौन सा गेम कितने स्टूडेंट पसंद करता है। ठीक है। इस तरह से हर चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो चलो, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज टेली मार्क, व्हाट इज बार ग्राफ, व्हाट इज पिक्टोग्राफ। ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल्स में अभी जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेन विथ मी। I will explain everything in details. Okay, so that you can get this or you can understand this very easily. ठीक है। मैं स्लोली जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि इतना अंडरस्टैंडिंग का जरूरत नहीं है, वहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ठीक है। तो चलो, अभी इसी टेबल को अगर हम ग्राफ का इसमें दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नब्बेस क्लास। देखो, मोस्ट पॉपुलर गेम हो तो क्या होगा, ये तो आपको काउंट करना पड़ेगा। जो गेम ज्यादा लोग पसंद करता है वही होगा पॉपुलर गेम। ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करके निकल सकते हैं। इसका इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास। अच्छा, व्हाट बी मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग द नॉर्दर्न, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास। अच्छा, व्हाट, try to find out the most popular game among your classmates. Puri wants to represent to the questions given below. Put the tick mark for the question where she needs to carry out the data collection. अच्छा, तो यहाँ पे देखो मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा होगा, मैं बता देता हूँ काउंट करके। देखो, उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ में। अभी मैंने काउंट किया था ना, देखो यहाँ पे कबड्डी कितना है, हमने काउंट किया था, एक, दो, तीन, फिर कबड्डी चार, पाँच, छ, और तो नहीं है कबड्डी, कबड्डी हो गया छ, हॉकी कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और हॉकी छूट तो नहीं गया, तो आठ, हॉकी हो गया आठ। ठीक है, हॉकी एच, एट, फिर ये क्या, सत्यल्ला, एक और है क्या सत्यल्ला, दो, तीन, चार, पाँच, सत्यल्ला हो गया पाँच। फिर देखो क्या बचा है, क्रिकेट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, क्रिकेट हो गया छ, बैडमिंटन एक, दो, बैडमिंटन हो गया दो, फुटबॉल हो गया एक, एक, दो, तीन, देखो फुटबॉल हो गया तीन, खत्म सब। अब देखो बोलेगा मोस्ट पॉपुलर क्या है, देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, हॉकी। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है। अच्छा, ये मेरे को काउंट करके निकालना पड़ा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट काउंट करके नहीं निकालना है, वही तो होते गुड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दिखाऊंगा। ठीक है। चलो, आज इसको डिलीट करते हैं ऑल एनोटेशन को, फिर जाता हूँ नेक्स्ट। चलो, तो यहाँ पे put cross for the question where she does not need to collect data. Discuss your answer in the classroom. What is the most popular TV shows among the classmates? इसको आपको नहीं करना पड़ेगा, ये डाटा कलेक्ट करके इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। ठीक है।
आप देखो यहाँ पे जो मैं बोला था ना अभी, टेलीमार्क्स, देखो ये आ गया टेलीमार्क्स, ठीक है। समझ लो क्या होता है टेलीमार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो श्री नीलेश इज ए टीचर, he decided to bring sweets to the class to celebrate the new year, ठीक है। the sweet shops nearby has जलेबी, क्या क्या है स्वीट शॉप में, जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला है। कितना टाइप का है, एक, दो, तीन, चार, पांच टाइप का है स्वीट। यू वांटेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये जो लाना है ना, अभी जो चिल्ड्रन कितना चॉइस करते हैं, कौन रसगुल्ला खाता है, कौन गुलाब जामुन खाता है, तो देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो ये टेबल क्या बनाया, देखते हैं। उन्होंने टेबल बनाया ऐसे, देखो टेबल बनाया ना ऐसे, जो स्वीट, देखो यहाँ पे स्वीट टेबल बनाया, स्वीट, फिर टेलीमार्क, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जलेबी खाने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो कितना, देखो टेलीमार्क होता है, देखो यहाँ पे ऐसे, सपोज तुम्हारे पास छः, सपोज तुम्हारे पास छः स्टूडेंट है, तो आप ऐसे करोगे, टेलीमार्क कैसे जाना पड़ता है, ऐसे फोर वर्टिकल लाइन, और जो पांचवा नंबर इसमें ये ऐसे इंक्लाइन लाइन देना पड़ता है। फिर ये पाँच हो गया, फिर शुरू होगा दूसरा, एक हो गया छः। अगर होता है तुम्हारे पास 11, सपोज 11 स्टूडेंट लाइक करता है कुछ चीज, तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। 11 नंबर कैसे दोगे टेलीमार्क से, पहले चार ऐसे देना, वर्टिकल लाइन, फिर एक इंक्लाइन लाइन, ये तो कितना हो गया, पाँच हो गया ना, एक, दो, तीन, चार, इंक्लाइन पाँच। फिर तो पाँच, 11 में से पाँच हो गया, फिर चार लाइन ड्रॉ करोगे, एक इंक्लाइन हो गया 10, और बचा एक, एक ऐसे। मतलब टेलीमार्क में आपको चार चार मार्क, मतलब वर्टिकल लाइन देने के बाद एक इंक्लाइन लाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप में होते हैं पांच करके टेलीमार्क, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे टेबल में जलेबी जो पसंद करता है वो छः है, तो ये टेलीमार्क से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे नंबर लिखा। अब गुलाब जामुन देखो 9 स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसीलिए जो पहला ऐसे ग्रुप में टेलीमार्क का पाँच है, फिर दूसरा ग्रुप में चार है। अब गुजिया, देखो यहाँ पे कितना लोग पसंद है तुमको लिखना पड़ेगा। देखो गुजिया, देखो ये एक ग्रुप है टेलीमार्क का, दूसरा ग्रुप है फुल, चार देके फिर इंक्लाइन, मतलब फुल हो गया, तो यहाँ पे पाँच हो गया, यहाँ पे पाँच हो गया, और यहाँ पे तीन, मतलब 10 प्लस थ्री मतलब 13। तो इसका आंसर होगा 13। फिर बर्फी, देखो एक, दो, तीन, तो ये होगा तीन। फिर रसगुल्ला कितना पसंद करता है, देखो यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे दो है, कितना हो गया, कुल मिला के सात हो गया। सो गॉट इट, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बाय टेलीमार्क, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी फिलअप जो फुल किया ना, फिलअप जो कंप्लीट किया, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। टेलीमार्क वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ some of you have any queries regarding this, so you can write me in the comment box, ठीक है। I will get back to you. So I hope there will be no doubt, because I am explaining it very slowly, okay। आप देखो इसी टेबल के जरिए ये जो डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बाय द टेलीमार्क्स, अभी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा, तो ये आप लोगों के लिए वेरी इजी रहेगा, मैं बता देता हूँ। देखो ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, वेरी इजी। हो, देखो यहाँ पे जलेबी कितना लोगों ने चूज किया, सिक्स, तो यहाँ पे आंसर होगा, ये आंसर होगा सिक्स होगा, आंसर सिक्स। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी कॉपी में नोट करो। ये तो अगर साथ में अगर बुक्स है तो बुक में पेंसिल से लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिक्स। फिर बोला बर्फी वाज चोजन बाय कितना स्टूडेंट्स, देखो बर्फी वाला यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन स्टूडेंट बर्फी पसंद करते हैं।
फिर बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया। तो ये गुजिया कितना स्टूडेंट है, ये 5, ये 5, ये 3, हो गया 13। तो गुजिया मतलब 13 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं दोबारा बोलो क्या, कैसे कैसे 5 है देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, हो गया ना 5 यहाँ पे। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, तो 5 + 5 + 3 हो गया था 13, ठीक है। रसगुल्ला वॉज चोजन बाई, रसगुल्ला कहाँ है इधर, कितना स्टूडेंट में, ये देखो 5, ये 2, कितना हो जाएगा 7। सो इट इज नॉट सो टफ, ठीक है। होप यू आर क्लियर, सो वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर। ओके, आई एम अगेन डिलीटिंग दिस। सो ठीक है, ये पे और एक क्वेश्चन रह गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, देखो गुलाब जामुन कितना है यहाँ पे, गुलाब जामुन कितना पसंद करते हैं देखो आप लोग खुद ही, ये 5, ये 3, ठीक है ना 4, तो 9, 9 स्टूडेंट्स पसंद करता है गुलाब जामुन, ठीक है। यहाँ पे होगा, लास्ट में होगा ये पे 9 होगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू, सो आई एम गोइंग फर्दर विदाउट एनी डिले, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्गर, ठीक है। चलो चलते हैं हम दूसरा जगह पे। अब यहाँ पे देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बुक में कोई भी टॉपिक्स छूट ना जाए, क्योंकि एग्जाम में तो इनसाइट से क्वेश्चन आता है ना, तो सारे इनसाइट भी समझना जरूरी है, ठीक है। मैं आपका जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में फिगर इट आउट, वो भी सॉल्व करा रहा हूँ, प्लस उसका रिलेवेंट जो थ्योरीज है इनसाइट वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यू जस्ट फॉलो मी, रिमेन विथ मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, सी नीलेश रिक्वायर्ड, see Nilesh requested one of the staff members to bring the sweets as given in the table. The above table helped him to purchase the correct numbers of sweets. अच्छा, is the above table sufficient to distribute each type of sweet to the correct students? Explain. If it is not sufficient, what is the alternative? अच्छा, ये जो टेबल था ना, ये पे देखो 2 नंबर में टेबल दिया हुआ है, क्या दिया देखो, to organize the data we can write the name of each sweets in one column and usually tell it signs, note the number of students who prefer the sweets. The number 6, 9 are the frequencies of the sweet. Preference for jalebi। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पहले जो करवाया था ना, जो बताया था कि जलेबी 6 लोगों ने पसंद करते हैं, गुलाब जामुन 9 लोगों ने पसंद करते हैं, ये जो 6 और 9 ये क्या होता है मालूम है, ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, मतलब कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जलेबी पसंद करते हैं, मतलब ये जलेबी का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर व्हेन एनीथिंग रिपीटेड, दैट इज जलेबी खाने वाला स्टूडेंट 6 हो गया, मतलब ये 6 लोग रिपीट करते हैं, मतलब जलेबी खाता है सिर्फ, पहले वाला खाया, फिर दूसरा वाला खाया, फिर तीसरा वाला खाया, फिर चौथा वाला खाया, फिर पांचवा खाया, सिर्फ छोटा खाया, तो ये रिपीट होने हो रहा है ना जलेबी में, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो चीज बार बार होता है ऐसे यू 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 यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो कितना लोग खाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक ही चीज कितने लोग करता है वही होता है, वो जो नंबर है ना वही होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो अभी हम यहाँ पे इन्होंने यही लिखा, तो आ सकता है क्वेश्चन में कुछ डाटा देगा, बोलेगा इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका मतलब कितना लोग इसको यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली बताया फ्रीक्वेंसीज, जो वहाँ पे टेबल में जो स्वीट में जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन ये दिया था ना, इसका जो नंबर है 6, 9 etc आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसीज, ओके। नाउ सुश्री संध्या asked her students, this is another topics, about the sizes of the shoes they wear. She noted the data on the board. अभी क्लास में जो स्टूडेंट्स है ना उसका शूज का साइज तो अलग अलग होगा, तो यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया, किसी का नाम नहीं लिखा, ओनली साइज लिखा। किसी स्टूडेंट ने एक ने बोला इसका साइज 4 है,
ठीक है, तो इसने 4 लिखा। एक ने बोला साइज 5 है, जूते का नंबर होता है ना, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, है ना। तो ये 3 नंबर का किसी को लगता है, 4 नंबर का, फिर एक स्टूडेंट को 3 नंबर मिला, फिर एक को 4 मिला, फिर एक को 5 नंबर चूज बोला, फिर एक ने 5 बोला। ऐसे करके करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 27 स्टूडेंट का इसने जूते का साइज लिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिख दिया ना, वो भी ये देख के आप नहीं बोल सकते हो कि मैक्सिमम कितना लोगों का जूते का साइज 4 है। ठीक है, क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या साइज पहनता है जूता, ये ढंग से समझने के लिए आप इसको टेलीमार्क देके जब बनाओगे ना टेबल, तो ये देखने में आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, क्या क्या है इन्होंने क्या क्या, देख लेता हूँ। इन्होंने फिर यहाँ पे, अब देखो ये बोला कि फिगर इट आउट। ठीक है, हेल्प हाउ टू फिगर आउट द फॉलोइंग। अब यहाँ से इसको कैसे पता चलेगा, इसको हम बनाएंगे टेलीमार्क। ठीक है, अब ये देखो, इसका सोल्यूशन मैंने करके रखा है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, याद रखना, ये पेज नंबर क्या है, 77 है। ठीक है, तो चलो हम वहाँ पे जाते हैं, पेज नंबर 77 वाला। ये देखो, पेज नंबर 77 में जो है ये वाला क्वेश्चन 2 था ना उसमें, ये वाला 77। ठीक है, और बाकी जो ये आंसर है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये पे ये जो डाटा है ना, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इस तरह से टेली मार्क वाला टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने इसका सोल्यूशन ये बनाया टेली मार्क, और मैंने दिखाया था तुमको पहले। तो यहाँ पे क्या आपको शो का साइज देखना पड़ेगा, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा एक बार कास्ट करके। ये फोन नंबर, तो आप पहले देखेंगे कि फोन नंबर वाला शूज का साइज कितने स्टूडेंट का है। देखो, एक हो गया, 2 हो गया, ऐसे आप जब काउंट करोगे ना, तो इसमें से राउंड मार लेना, ताकि नेक्स्ट काउंटिंग में सुविधा हो। ठीक है, पेंसिल से करना है सब। तो 4 नंबर वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो और कुछ बचा है 4 नहीं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 स्टूडेंट को 4 नंबर का साइज वाला जूता लगता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेबल में, ये जो देखो 4 नंबर वाला, देखो यहाँ पे 9 दिया। ठीक है, पहले 4 नंबर वाला लिया, वहाँ पे शायद स्मॉलेस्ट 3 है। हाँ, स्मॉलेस्ट 3 है, इसलिए पहले 3 काउंट किया। अगर 3 भी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, 3 है 3 बार, तो इसीलिए उसका जो टेली मार्क हमने बनाया ऐसे काउंट करके, देखो यहाँ पे 3 नंबर का मेरे को मिला 3, इसलिए 3 ऐसे वर्टिकल लाइन दिया, मतलब टेलीमार्क दिया। फिर यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई कोई इसमें लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह में आप यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो 3 था, यहाँ पे 3 टेलीमार्क दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 लिखा। फिर 4 नंबर वाला जो था 9, इसीलिए देखो पहले पे एक ग्रुप दिया 5, फिर 4 बचा है, इसमें 4 लिखा, हो गया ना 9, 9 लिख दिया। फिर 5 नंबर वाला 10 मिला, इसलिए ग्रुप बनाया टेलीमार्क का 5 5 करके। ठीक है, पहले 4 वर्टिकल, फिर एक इंक्लाइन। अभी देखो ये जो इंक्लाइन है ना, कोई कोई इंक्लाइन ऐसे भी दे सकते हो, कोई कोई इंक्लाइन को ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हो, ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, ऑलवेज वर्टिकली सिर्फ 4 होगा,
और 5 नंबर वाला ऐसे या ऐसे, ठीक है। ऐसे मत देना कि 5 देके फिर 1 दिया तो 6 हो जाएगा, तो ये टेलीमैक्स का रूल्स का बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओनली 4 वर्टिकल 1 इंक्लाइंड, ठीक है। सो 6 नंबर वाला 4 मिला तो इसलिए दिया, 7 वाला 1 मिला। अब देखो ये जो मैंने टेबल बनाया है, टेलीमैक्स दैट इज द समटाइम्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, समटाइम्स इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ऑल्सो, ठीक है। अगर बोलता है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा, तो ये ऐसे बनाना है विथ टेलीमार्क, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से वेरी इजीली हम बोल सकते हैं जो सबसे जूते का साइज सबसे बड़ा कौन सा है, ये होता है साइज ऑफ द शूज, लेफ्ट कॉलम। तो देखो 7 नंबर वाला होता है सबसे बड़ा साइज, तो लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास 7 हो गया। द स्मॉलेस्ट शू साइज, देखो ये 3 नंबर हो गया स्मॉलेस्ट, ये 3 हो गया आंसर। देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु वेयर शूज साइज 5। अब बोले कितना स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन में देख लो क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि, बताता हूँ आपको, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है कहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं इसको एनोटेशन को हटाता हूँ नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये वाला पे हो जा रहा है, ठीक है। होल्ड करो थोड़ा बहुत, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि देर आर डे स्टूडेंट्स हु वेयर शूज साइज 5। अभी 5 नंबर वाला शूज पहनते कितना स्टूडेंट है, ये देखो मैंने जो टेलीमार्क वाला टेबल बनाया, इसमें ऑलरेडी देखो 5 नंबर वाला 10 पहनता है, इसलिए इसमें 10 लिख दिया। फिर देर आर डे स्टूडेंट्स हु वेयर शूज साइज लार्जर देन 4। लार्जर देन 4 कितना पहनता है, देखो ये 4 है, तो 4 से लार्ज मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो बोला कि लार्जर देन 4 कितना स्टूडेंट शू पहनते हैं, तो 5 वाला कितना पहनते हैं, 10 जन। 6 वाला 4 हो गया 14 टोटल, 7 वाला 1, 4 से ज्यादा 5 6 7 नंबर का शूज, तो ये 10 + 4 + 1 हो गया 15, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो हमने शूज का ही लिया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हम इसको दूसरा तरीके से कर सकते हैं, डेली मार्क्स से तो कर सकते ही, वेरी इजी है। वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले 3 आता है छोटा, तो 3 3 3 3 है, 3 लिख लिया, फिर 4 4 4, वो जितना 4 है लिख लिया, फिर जितना 5 है लिख लिया, फिर जितना 6 है लिख लिया, फिर जितना 7 है लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। इट टेक्स ए बिट मोर टाइम टू आंसर एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी टेबल। जब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था ना, ये बनाओगे तो आपको टाइम लॉस कम होगा, बट अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा कि अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा तब क्या अच्छा होगा, कर सकते हैं, बट इट विल बी नॉट बेटर देन द फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी टेबल इज द मोस्ट रिलेवेंट और हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि टाइम, इट सेव्स आवर टाइम। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, आर देयर अदर वेज टू मैनेज द डेटा, और कुछ है क्या, यस द डाटा ऑल्सो कैन बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यस असेंडिंग ऑर्डर से भी कर सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन 4 में, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। When you observe a tree on the way from your home to school or while walking from the place to another place, तुम्हारा स्कूल से मतलब होम से जब स्कूल जाते हो ना, आसपास में क्या क्या ट्री मिलता है उसका नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट समझना है। बोले इसको रिकॉर्ड करो और डाटा बनाओ। पीपल ट्री कितना मिला, नीम ट्री कितना मिला, ठीक है, कौन सा ट्री ज्यादा मिला, कौन सा ट्री कम मिला, तो ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डेटा अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा। आपके लिए एक होगा, आपका बंधु जो आपका जो फ्रेंड चिंटू, इसके लिए अलग होगा, मिंटू के लिए अलग होगा, जिंटू के लिए अलग होगा, ठीक है, रिंटू के लिए अलग होगा। तो चलो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। बोले टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट इन स्मॉल न्यूज आइटम्स फ्रॉम news from a newspaper. Each students may use a different article. मतलब कुछ न्यूज़पेपर से पेपर जो इम्पोर्टेंट होता है ना, ये जैसे कि आज बोला कि आज हमारा सिटी में पीएम आने वाला है, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा, क्यों आएगा लिखा। तो एक ने इसको उठा के पेपर में टेस्ट कर दिया। किसी ने आज स्कूल में ये एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जयंती हुआ था, उसके लिए कुछ आर्टिकल आ गया पेपर में, उसने वो छिपका दिया। इसे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट करवाया। इन्होंने जो छिपकाया ना, अभी क्वेश्चन क्या देखो। नाउ प्रिपेयर द टेबल ऑन पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो, काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर सी ई आई आर एंड एक्स इन द वर्ड्स ऑफ द न्यू आर्टिकल एंड फिल इन द टेबल। ठीक है, ऐसे लेटर ई ई सी ई आई आर एक्स, एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस। अब देखो यहाँ पे अगर 5 स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया, तो वो लिखेगा इसको कितना सी मिला, कितना ई मिला उस न्यूज आर्टिकल में, कितना आई मिला, कितना आर मिला, कितना एक्स मिला, लिखेगा, लिख के टेबल बनाएगा, ठीक है। बोला द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ आइटम टाइम सर। ये भी आपको है ना, इतना रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे रेडीमेड नहीं है ना, आपको क्वेश्चन आएगा तो इसे रेडीमेड बना के देगा, ठीक है। तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्ट करेगा तो क्या होगा डिफरेंट के लिए, डेटा तो है नहीं, तो आप इसको स्किप करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो आप लोग घर पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, मैं तो आपको समझाया नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 77 नंबर पेज में हमने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम पिक्टोग्राफ आज समझा के ना, ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में बाकी रेस्ट तक करेंगे। तो अभी पिक्टोग्राफ क्या है ये समझ के जाओ। अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज किया, दैट इज टेलीमार्क विद टेलीमार्क्स, एंड ऑल्सो कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये चीज हमने सीखा। अभी डेटा को हम ना पिक्चर देके भी कर सकते हैं। आप पिक्चर कह दोगे, अभी दिखाते हैं। कोई भी डेटा हम टेलीमार्क नहीं देके, उसके जैसे सपोज हमारा क्लास में 5 स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 स्टूडेंट्स हॉकी पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक पिक्चर बनाएंगे क्रिकेट बॉल का ऐसे, ठीक है, बना के ऐसे क्रिकेट बॉल बनाएंगे, या तो ऐसे एक स्टार बना दिया, ठीक है, एक पिक्चर। स्टार स्टार तो ठीक से हुआ नहीं, स्टार ओके, स्टार एक पिक्चर हो गया ना। तो एक स्टार मतलब 5 स्टूडेंट्स, ये एक स्टार जो है ना 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक क्लास में क्रिकेट, एक टेबल बनाएंगे इसे, क्रिकेट, फिर हॉकी, हॉकी। अब मैंने क्या बोला, क्रिकेट पसंद करते हैं 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डाल देंगे एक स्टार। और मैंने बोला हॉकी पसंद करते हैं, देखो क्रिकेट पसंद करते हैं 5 स्टूडेंट्स, हॉकी पसंद करते हैं 10 स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने 2 स्टार डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केल लिख दिया। ये होता है स्केल, पिक्टोग्राफ में ये स्केल होता है। एक जो पिक्चर तुम यूज करोगे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वो एक पिक्चर कितना नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो लिखना पड़ता है। सो दिस इज द स्केल यूज्ड इन द पिक्टोग्राफ, ये पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो अभी सपोज वॉलीबॉल, बी बॉल,
ये सपोज पसंद करते हैं 15%, 15 स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे 15, तो 5 स्टूडेंट में 1 स्टार, तो यहाँ पे होगा 3 स्टार। ठीक है, तो इससे हमको पता चलेगा कि 3 स्टार मतलब यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट्स वॉलीबॉल को प्रेफर करते हैं। अगर फुटबॉल को प्रेफर करता है, फुटबॉल 40 लोग, तो यहाँ पे कितना होगा स्टार, यहाँ पे स्टार होगा 8 स्टार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, अगर देखो 5 लिया ना, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, इसको मैंने डिलीट करता हूँ, क्योंकि देखो पहले तो ये एक्सप्लेन कर लिया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको बुक में क्या दिया। जस्ट पिक्टोग्राफ क्या होता है, नंबर को हम पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे इन द ग्राफ और इन द टेबल वी रिप्रेजेंट द डेटा, सो दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्चर से रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे देखो क्या क्या, ऐसे मॉडलिंग ट्रेवलिंग, मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग लिखा, प्राइवेट कार से कितना स्टूडेंट जाता है। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया ऐसे स्माइली, इसमें आगे लिख दिया 1 स्टूडेंट, सो दिस इज द क्या है स्केल। तो ये जो पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया ना, यहाँ पे जो लिखा है ना 1 स्माइली इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे प्राइवेट कार में जो टेबल है ना, वहाँ पे 5, यहाँ पे 4 दिया ऐसे स्माइली, इसका मतलब यहाँ पे कितना स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स जाता है प्राइवेट कार में। और पब्लिक बस में कितना जाता है, देखो कितना दिया पिक्चर, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 स्टूडेंट जाता है पब्लिक बस से। और स्कूल बस से कितना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है ना, पिक्टोग्राफ से मतलब देखने में अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको मतलब ब्यूटी और इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये सब किया गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है सबका मन में कि ये, आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, पहले ढूंढता हूँ बुक में दिया है क्या नहीं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, नंद किशोर कलेक्टेड responses from the children of his middle school in the Berasia regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared the pictograph from the data. देखो जो लोग ऑलवेज ऐसे सोता है, क्या बोला, स्लेप्ट ऑफन द स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स, जो जो लोग 9 घंटा सोते हैं, ऐसे ऑलवेज होता है, इसका नंबर कितना मिला, देखो यहाँ पे 1 2, कितना पिक्चर मिला पे, पिक्चर मिला आपको 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो स्केल दिया, स्केल देना जरूरी है। एक पिक्चर 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे होगा 50। तो 50 स्टूडेंट ऐसा है जो 9 घंटा ज्यादा सोता है। फिर समटाइम्स होता है 1 2 3, मतलब यहाँ पे हो गया 30, क्योंकि एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नेबर 1 2 3 4 मतलब 40। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि नेबर में अगर 35 स्टूडेंट होता, तब आप इसको पिक्चर से कैसे करता, क्योंकि 10 करके एक होता है ना, तो अब इसमें अब एक देता, एक पिक्चर हो गया, 2 पिक्चर हो गया, 3 पिक्चर हो गया, 30 हो गया ना। अब बचा कितना, 5। अब ये 5 को कैसे दिखाओगे, क्योंकि एक को तो 10 स्टूडेंट एक होता है पिक्चर, तो इसके लिए पिक्चर आधा देना, आधा, मतलब यहाँ पे पिक्चर एक आधा काट के आधा देना, मतलब एक पिक्चर 10 तो आधा पिक्चर 5 हो गया। ठीक है, हाफ पिक्चर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल गेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम। देखो वन क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन इसने डिस्कस किया,
ये पिक्टोग्राफ देखिए, आपको बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्टोग्राफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट? तो एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट मतलब इसको 9 आवर्स सोता है, तो कितना होगा ये? 1 2 3 4 5 मतलब 50 हो गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 50। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 50। ठीक है, क्यों 50 हुआ? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 5 × 10। हाउ मेनी चिल्ड्रेन समटाइम्स स्लेप एट 9 आवर्स? समटाइम वाला में कितना है? 1 2 3 मतलब 3 × 10 या 30 हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज स्लेप्ट इन द नाइट? 9 ऑलवेज होगा तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स? तो 9 आवर लेस देन 9 आवर्स कितना होगा? ये वाला 1 2 3 4 5 5 × 10, ठीक है। तो चलो, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो। देर आर टू कंप्लीट पिक्चर, 2 × 10 30। यहाँ पे हाफ पिक्चर दिया है क्या? ओ, यहाँ पे हाफ पिक्चर है एक, देखो। ये जो समटाइम्स वाला है ना, यहाँ पे 30 नहीं होगा, मैंने यहाँ पे रॉन्ग देखा। समटाइम्स वाला में जो यहाँ पे हाफ पिक्चर इन्होंने यूज किया, तो मैं बोलने वाला था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो समटाइम्स वाला में ना, एक पिक्चर इन्होंने हाफ दिखाया, देखो हाफ दिखाया, मतलब यहाँ पे 10 10, यहाँ पे 5 मतलब 25, ठीक है। तो देखो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने देर आर टू कंप्लीट पिक्चर, सो 2 × 10 20 हो गया, एंड हाफ पिक्चर सो 5 हो गया। therefore the number of children who sleep at least 9 hours only 25, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में देर आर 4 कंप्लीट पिक्चर फॉर नेवर स्लीप, तो 4 × 10 हो गया 40, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अभी इसमें से बोला कि इसे पिक्टोग्राफ रखो, ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ। ये भी दे दिया सोल्यूशन, देखो। वन डे लखनपाल कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास। देखो ये क्लास में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट दे दिया 3 5 4। अब इसको पिक्टोग्राफ में दिखाना है, कैसे दिखाना है? देखो इसमें सोल्यूशन दे दिया। He created a pictograph to present this data and decided to show one student as one picture, ठीक है। देखो ये रहा स्केल, तो फिर उन्होंने स्केल ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ये इसका स्केल है, ठीक है। अब देखो वेरी इजीली इन्होंने ड्रॉ किया, तो देखो क्लास 1 में 3 जन, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लास 1 में देखो 3 पिक्चर दिया, ठीक है। क्लास 2 में 5, देखो इधर इधर एक्स एक्सिस नीचे वाला का बोलते हैं, ये जो है मैंने ग्राफ में पहले बताया था, देखो ये जो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में एक्स बोला नहीं इसमें, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकली गया, ये गया हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल में दिया उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, और वर्टिकली में दिया क्लासेस। देखो ये क्लास 1 है, ये जो लाइन होगा ना, रो होगा, ये होगा क्लास 2 का, ये क्लास 3 का, ये क्लास 4 का, ये क्लास 5 का, ऐसे दिया। तो क्लास 1 में देखो 1 2 3 दिया, 3 पिक्चर मतलब ये 3 है। क्लास 2 में देखो 5 है, इसीलिए इसमें 5 पिक्चर दिया, ठीक है। क्लास 3 में 4 है, इसलिए क्लास 3 में 4 दिया। क्लास 4 में 2 दिया, क्लास 5 में 0, इसलिए कोई पिक्चर नहीं आया, ठीक है। इस तरह से ये पिक्टोग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वीडियो लेंथी हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, हमने आज जो समझ लिया इसका समझ अगर करते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल सीखा, हमने पिक्टोग्राफ सीखा, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो यहाँ पे और एक दिया, ये सिमिलर है, इन्होंने ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई करना, देखो यहाँ पे हाफ भी यूज किया, ठीक है। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं ये जो क्वेश्चंस है ना पिक्टोग्राफ रिलेटेड, पेज नंबर आपका あ अच्छा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर चुका डिस्कस। ये पिक्टोग्राफ का जो बेनिफिट क्या है, ठीक है।
यहाँ पे पिक्टोग्राफ का बेनिफिट मेंशन किया हुआ है, आप लोग ये सीख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोला पिक्टोग्राफ्स आर नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा, दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पिक्टोग्राफ कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फरेंस अबाउट डेटा with just a quick glance. In the example above, about favorite games, favorite colors, most common modes of conveyance, number of students absent, etc. ये हम इजीली फाइंड आउट किए थे, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना। ये पे जो लास्ट में जो एक चीज दिया हुआ है, इसकी की स्केल्स, ठीक है। स्केल क्या होता है, ये स्केल और की ये मैं बता दिया था कि एक पिक्चर को कितना नंबर से रिप्रेजेंट करता है, ये होता है स्केल और की, ठीक है। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो फिगर इट आउट, ये जो पेज नंबर 83, ये जो क्वेश्चन शुरू हुआ है वो हम लास्ट कमिंग डे में, देखो पिक्चर पेज नंबर 83 से 84, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना वो हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 83 से 84 जो क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन है, यहाँ पे एक, दो, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बार ग्राफ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे अप टू दिस मच, सो please keep on watching my videos on these topics, class 6 mathematics. Okay, I hope you will be benefited through this video. And if you really feel that you are getting benefit, please share this video to your friends so that they can also get this benefit. And also, those who had not yet subscribed, please subscribe also my channel. Thank you. Bye bye. I will see you in the next video. Thank you.